अभिनंदन स्वागत करते हैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही मेरा अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष सर का, मिनिस्टर सर से भी अनुरोध मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सर हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। अगर आप अपनी दिल्ली को बेहतर तौर पर जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध, आप इस ऐप को जैसे ही इसका लॉन्च हो उसके बाद अवश्य डाउनलोड कीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली एक आकर्षक पर्यटन स्थल है और अगर इसे भारत की पर्यटन राजधानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के सबसे बड़े शहरों में जो प्राचीन शहर हैं और जो आधुनिकता के साथ आज का जीवन जी रहे हैं, वो दिल्ली जैसा एक बड़ा शहर है। दिल्ली का इतिहास खूब लंबा है और उतार चढ़ाव भरा रहा है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो 7 शहरों के खंडरों पर अपनी नई जिंदगी को बड़ी शान से जी रहा है। दिल्ली एक ऐसा राज्य जहां बहुत सारे जातीय समूह और उनकी संस्कृति व परंपराओं को आत्मसात कर आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो पूरे देश को ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को नए नए मुकामों के साथ नए रास्ते दिखा रहा है। और आज उसी अवसर पर देखो मेरी दिल्ली ऐप दिल्ली सरकार लॉन्च करने जा रही है। हम इस अवसर पर अपने सभी अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। मेरा अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध हमारी सेक्रेटरी टूरिज्म मैडम से कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैडम से मेरा अनुरोध हमारे डिप्टी सीएम सर को नवांकुर भेंट करें। स्पीकर सर को हम नवांकुर, इधर मैम इधर, हम अपने मंत्रालय की ओर से दे रहे हैं। श्री सत्येंद्र जैन सर को नवांकुर भेंट कर रहे हैं। श्री राजेंद्र पाल गौतम सर को और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को ये नवांकुर हम भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप सहभागी बने। मेरा अनुरोध हमारे सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण से जो मंच पर हैं उनसे कि वो पहली पंक्ति में आएं और आज का ये ऐप का एक प्रेजेंटेशन आपके सम्मुख हम कराएंगे। सभी से मेरा अनुरोध। मेरा अनुरोध सेक्रेटरी टूरिज्म मैडम से वो आएं और इस ऐप का परिचय हम सब से कराएं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। Honorable Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Manish Sisodia ji, Honorable Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Shri Ram Nivas Goyal ji, Honorable Ministers of the Cabinet, Senior Officers of Government of Delhi, and dear friends. Today is World Tourism Day. Since 1980, the United Nations World Tourism Organization has celebrated this day because it was on this day that the statutes of the UNWTO were adopted. The purpose of this day is to raise awareness on the role of tourism within communities and to demonstrate how it affects the socio-cultural, political, environmental, and economic values worldwide. The theme for this year's celebration is Tourism for Inclusive Growth.
And so, Delhi Tourism, recognizing the extreme importance of this day and the special theme for this year, decided to develop an app, a mobile app that is all inclusive for everyone. An app that is not just an ordinary app, but a tool we at Delhi Tourism wish to place in every person's hand in Delhi, across India, and people throughout the world to make them truly independent while visiting Delhi. As Delhi marks and celebrates the 75 years of India's independence with the citizens of India, Delhi Tourism makes this little effort to celebrate Delhi's historic, cultural, and rich architectural heritage by bringing it closer to people with this new app we all lovingly call Dekho Meri Delhi. But before I move any further, I need to pause a bit and extend my and my team's heartfelt thanks to Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji for taking out time today to be amidst us and raising our morale. Thank you very much, sir. Our deepest appreciation also go to our Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Minister Tourism, Government of Delhi, Shri Manish Sisodia ji, with whom we have discussed and worked on this idea on having Delhi Tourism's mobile app. Needless to say, Honorable Minister has been sharing his new and many innovative ideas with us, and they make our mobile app, Dekho Meri Delhi, much more colorful, much more brighter, and much more useful to everyone. Thank you to you, sir. We would also like to express our heartfelt gratitude to our respected Chief Secretary, Shri Vijay Dev, and Principal Secretary Tourism, Shri Vikram Devdutt, who have been a guiding light in all our touristic endeavors. We thank you also, sir. We understand that the positive impact of tourism is felt by all. We assure you that Delhi Tourism will continue to play the part in making people enjoy the treasures of Delhi with all safety protocols. Also, Delhi Tourism will continue to work for branding of Delhi as a national and international tourist destination. This mobile app is one step in that direction. So, Delhi, happy exploring. We welcome everyone present here and the people of Delhi with Honorable Chief Minister's very, very encouraging message, which is happy exploring. Some of the unique and distinctive features of the app, which make the Delhi Tourism app very, very different from all the existing apps, we are saying that, is it doesn't provide only the detailed information about various aspects of Delhi in your hands, but there are so many facilities and distinctive features which make it possible for every single person to actually do away with the Google map or with any of the Google features. That is what we have tried to do, which means the mobile app is very, very comprehensive, but still in your little hands. Gain access to Google Maps. Why should you discover Delhi? How do you plan your tour? If you happen to be here for half a day to 6 days at least, Delhi Tourism is actually working to help out an itinerary for you so that you make it convenient and you find it convenient to go anywhere with just that simple mobile in your hand. The places to explore, all conveniences. Google Lens feature is a very special feature we have tried to put in, which is wherever you go, use the Google Lens, just click a photograph, and the Google will search from the entire Google series and find out detailed information about that place. So again, for information, we are trying to do away with the hand-printed bills or brochures. The Delhi Darshan video is something which will take it at the end. This is just the main menu. We like to focus on two parts, which is book your tickets and the feedback. This is one of the main features that we have, which is book your tickets. So that means you do not have to go an individual departments or ASIs or any specific department's website and book a ticket. You use the mobile app, get all the information available here, book it on the date that you want to, and then
it takes you to the website, you make the payments and the ticket is in your hands and you make the visit, and everything you are doing it from the ease and comfort of your homes. We at Delhi Tourism know and understand that the biggest room in the house is the room for improvement. And that is why this app at the beginning provides us a help from all of you, from the people of Delhi, with suggestions and feedback, whether this app was useful, how would you like us to improve, what are the feedbacks when you go and visit places, so that we work better and make Delhi much better. Maps and directions, we would not like you to go to Google Maps wherever you are, but use this mobile handy feature, because at the end of every destination, we have the Google Map in front of you, you click it and you find out how much distance does it have, and it will take you to reach there. 6 ways to discover Delhi is the one. Wherever places near me gives you, wherever you are sitting, you get at least 5 kilometers radius, the places where you can go and shop, the places where you go and go for entertainment, the places we can go and enjoy the delicacies of Delhi, and other features also there, which I'll just highlight later. This, as I told you, is a very unique feature wherein we at Delhi Tourism are trying to work out your schedule for you, so you don't waste time going through the Google and asking your friends and colleagues or people in the tourism department as to how you plan your tour. One example is where we have planned your tour for free, day 1, day 2, and also to the extent of going for the morning, afternoon and your evening visits, including the entertainments that you can go for in Delhi. The public conveniences are certainly very, very important, and this actually find a big place in our mobile app. There are around 13 items which we would like you to go when Honorable Chief Minister launches the app today, which is about Delhi. To explore the city are the places which you already know, but unexplored Delhi is the one which still has lesser number of people, or people don't know much about them. To help the people wherever they are, whether in Delhi, outside Delhi, or even at international destinations, if they want to visit the unexplored Delhi, some places we provide the video tours, the virtual video tours, to raise your morale to visit that area and expect specific requirements which you will have. The entertainment and fun. You might think that this is just one screenshot, but since this is not a mobile app but a PPT, well, once you click on it, you have all the entertainment and fun features available in Delhi, food tours and Delhi delicacies, specific to the point of naming the place or the shop which is famous in Delhi. So we have tried to give credence and credibility to the people, in a way putting pressure on them also to maintain cleanliness and hygiene, because now they are on the Delhi Tourism app. So we would like to serve a larger purpose of not only giving information but also serving as an IEC campaign for Delhi government. Delhi for Kids is a very special feature which we added this time. Includes all the features, because when we say it is tourism for inclusive growth, how can we leave the children behind? So when you are planning, your family is planning something, you must try to include some features which are available in Delhi. And I must say, as on date, all the information is pretty updated. But as I said, improvement, this is not a static mobile app. We would be continuously working on it and keeping it updated with whatever changes are happening in different departments, including the timings and whether they are open or closed. Shops in Delhi, health walks, festivals in Delhi. How do you travel within Delhi? There are different modes which we will show you ahead, and how do you travel to and from. So if you go to the Explore the City, you'll have all different kinds of heritage and monuments in Delhi, the parks and gardens, water bodies, religious tourism, museums. Then if you go again only and click the heritage and monuments, this is one screenshot, you will find all the different kinds of things, whether it is Coronation Rabah Park, or Ajah Singh Ki Baoli, or Azad Hind Gram, or Guru Tegh Bahadur Smarak, or Rajpath, all the different monuments at one place. You click and you get all detailed information about them, including the timings, the GPS availability, the booking of tickets, or any other information that you would like to go through on Google and search. We do not want to use the Google app for this purpose. So if you go, just for example, Red Fort, it gives you the entire information. You click read more, it gives you the entire information, the timings. The metro station is something which we know that ultimately it's all about transport and travel, where you have to visit a particular place, and we have tried to give it more importance here. And then, if it is the entry fee, you can directly go to the website, click, make the payments, and actually enjoy and cherish your visit to Delhi. This is Unexplored Delhi, which is one of the main features which we have added, is the place
where people actually do not go much, or they are lesser known, or they are much lesser publicized. One example would be, say, Jahaz Mahal. We have tried to put in, at the end, if you see, watch a video on Jahaz Mahal. So for the ones which are unexplored Delhi, we have put in the virtual video tours so that you would know what to expect before you visit there. Similarly, the Mott Masjid, again, watch a video on the Mott Mosque. These are the special mention we have been giving only to the unexplored ones because the explored ones are already much known amongst all of us. How do you stay in Delhi? Where do you stay in Delhi? What are the hotels? What are the budget hotels? What are the 5-star, 4-star, 3-star hotels? All those informations. Plus, when you click on any one of them, say if it is Hyatt Regency, it takes you to the website and gives the entire information, and you will be able to find it again handy on one set of mobile only. Adventure sports, golf courses, adventure sports is a very, very essential part of Delhi culture, and without that, I don't think the lives of the Delhi citizens is complete. So we are trying to put in as many as which are available there, and again, as I said, as Delhi develop, as Delhi grows, as new facilities develop, they automatically become a part of the mobile app. Delhi for Kids, as I said, and this is, suppose you want to go to the National Rail Museum, the entire information, plus you can have the timings, when is it open, and other details. Delicacies, how can we leave behind that? Because this is the most important part, I think, in the life of a Delhiite, which is where would you like to go for street food? If it is Chandni Chowk, you click Chandni Chowk and you get all the delicacies, all the special shops there, Chittaranjan Park, Jama Masjid, Connaught Place, high street cafes and all. So everything, again, you don't have to go for places near me, places within 5 kilometers of my residence, etc. Again, street bazaars and high street markets, again, for the people who love shopping while they're actually going out with their family and enjoying the cuisines. Emporiums and the details of the emporiums are very much here, so that again at one single, in your one hand, it's a one-stop shop for all your touristic needs. That's what we say at Delhi Tourism. Health walks, again a very important part. Wherever we would like to go, whether if it is GFS or any other places, what is the entry fee or all, what are the timings, even the seasons, etc. We have tried to put in every information that would be very useful for all of you. Festivals, a very integral part of Delhi, all its citizens of India, and that is why we have tried to include as many as are there and how they are celebrated, what are the different months. This is basically meant primarily for the regional and the international tourists who would like to see which season would be the best when they would like to visit Delhi. Travel within Delhi and to and from Delhi, I need not explain because it actually gives you details of the interstate buses and other things also, so that people know wherever they are outside Delhi, how to come to Delhi and how to go back. This is just a time-lapse video. It's a virtual walkthrough of whatever we have put in the comprehensive mobile app, and we would like just 1 minute of your time to go through it because that's how people will see what Delhi has to offer. Delhi Tourism and the Department of Tourism is working for. Before I end, I would like to extend my heartfelt thanks to all of you for your patient hearing, and also one of the most important and humble requests to all of you and all the people of Delhi to come up with new suggestions and ideas to make us improve better, to make tourism grow in Delhi for Delhi growth, because without this partnership, we do not succeed, and we would not like that. एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। Honorable Chief Minister Sir, Honorable Deputy Chief Minister Sir, Honorable Speaker of the Delhi Legislative Assembly, Honorable Cabinet Ministers,
ACS, GAD and other fellow officers, MD and other officers of the Delhi Tourism, and all dignitaries and friends present here. It is befitting, as Swati has said, that the launch of this holistic, comprehensive, never-before app is on World Tourism Day. Tourism and travel are the engines of growth of any economy. More so in Delhi, where if we look at the larger picture, the services sector in Delhi is the growth area of the future. Technology as an enabler, as a facilitator, has become increasingly important for the tourist who is increasingly becoming discerning. He is becoming niche, and his expectations are also like never before. I must compliment Swati and her entire team in Delhi Tourism for having developed this platform under the guidance of a very exacting and perfection-driven Honorable Minister who raises the bar for us every single time. And his suggestions have actually made this app a very, very comprehensive one. As all of us are aware, we have lived through very difficult times during the past year and also during the current year. And one would fully expect that given human nature and human psychology and the urge to travel which has been there ever since man found ways and means to travel, there would be a surge in travel and mobility in the near future, maybe in the next 6 months. This is an opportunity which is waiting to be tapped. Whether we call it revenge travel, where people will come out with a vengeance, we need to reboot and look beyond what Delhi Tourism has been doing as an organization in a limited sense, looking at operations, looking at marketing, looking at Delhi in its various aspects. We today live in a competitive environment. We see Goa and Kerala through decades have been constantly sniping at each other when they felt that the other state was doing better. Delhi is very uniquely placed as a gateway for the foreign tourist, for the domestic tourist. It is a port of call कि दिल्ली मुझे ज़रूर देखना है. So, in a sense, what Swati's app brought out very well, Delhi is all things to all people. और ये चीज़ जो है, ये मीर तकी मीर, जिनको हम कह सकते हैं कि दिल्ली उनकी म्यूज़ थी, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि दिल्ली के ना थे कूचे और के मुसव्वर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई. So these are the layers of Delhi, where every nuance, every hue, every aspect is a gold mine. जब मैं टूरिस्ट की बात करता हूँ, gone are those days of 2 days, 3 nights. Gone are those days of hit and run travel. कि एक दिन आप बस में बैठे, आपने सारे monuments देखे और अगले दिन आप आगरा चले गए और जयपुर चले गए. As policy planners, what we need to look at when we want to promote a state as a tourist destination is कि जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे, उसको हम यहाँ कितने दिन रोक पाते हैं, पहली बात. दूसरी बात, अगर हम उसको रोकते हैं तो उसकी मीनिंगफुल स्पेंडिंग एंड जो रेवेन्यू हम पर टूरिस्ट जनरेट करते हैं, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू डिफरेंट एवेन्यूज़. फॉर दैट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अलोन कैन ओनली प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर. वहाँ प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ इट. इनफैक्ट 2019 में दिल्ली वॉज द 4th मोस्ट विजिटेड स्टेट इन द कंट्री बाय फॉरेन टूरिस्ट. करीब 2.9 million tourists had come in 2019. बट अगर हम 4 या 5 साल का दायरा देखें तो जो रेवेन्यू पर टूरिस्ट पूरे देश के लिए था, उसमें दिल्ली का जो शेयर था वो करीब 1.5% गिरा. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिव एलिमेंट, दिस इज़ व्हाट आई मेंट कि जब तक हम ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू कीप इट सिंपल कि कैसे हम टूरिस्ट को ज़्यादा देर रखें और कैसे हम उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाएं.
So for that, Delhi has to be a wholesome experience. And in fact, पिछले कुछ सालों में कई पहलुओं पे, कई चीज़ों पे दिल्ली सरकार की नीतियाँ रही हैं, पॉलिसीज़ आई हैं, सोलर पॉलिसी आया है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे काम हुआ है. तो द एक्सपीरियंस ऑफ एन अर्बन सेटिंग एज अ city which is an ideal in itself, which connects the glories of history for the history buff to the happening places of today for the youngster or the fleet-footed person whose tastes change very fast. तो इन सब का मिश्रण जो कैलाइडोस्कोप होगा वो हमारे सामने चैलेंज है. तो एक तरह से हमें आज के दिन स्वॉट एनालिसिस करना है कि गैप्स कहाँ पे हैं, उन गैप्स को पॉलिसी मेजर्स के थ्रू हम कैसे और अट्रैक्टिव हम बना सकें. तो एक बात जाहिर सी होती है कि हर स्टेट में ये बात चलती है कि टूरिज़्म पॉलिसी एक होनी चाहिए. तो टूरिज़्म पॉलिसी नॉर्मली एक बहुत सरकारी सा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ बहुत जनरल से अंग्रेज़ी लिखी रहती है, उसमें इंटेंट अच्छे रहते हैं, लेकिन जो बारीकियां होती हैं और जो ट्रांसलेशन इनटू ग्राउंड होता है कि उसका इफेक्ट क्या है एंड हाउ डू यू मेजर द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी, दैट इज़ अ एरिया वेयर normally the tourism departments in any state do not have the wherewithal or the expertise to examine that at close quarters. तो कई चीज़ें पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के तहत बास्केट ऑफ इंसेंटिव्स वगैरह जो डिज़ाइन आप करते हैं थ्रू टैक्सेशन, थ्रू अदर फिजिकल मेजर्स, एंड वी आर लकी दैट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑनरेबल CM सर हैज़ ऑलवेज been one for very, very citizen friendly measures across the spectrum in all sectors. So this basket of incentives for the tourist ecosystem जो है वो हम लोगों को इतना competitive बनाना है कि we should be able to stand out among all the states as a very, very progressive state, and we are uniquely poised to do it. मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए तो ऑब्वियसली बहुत मार्केट में अच्छी एजेंसीज़ हैं जो आपको वैसे प्लेस कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली द टेस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑल्सो हैज़ टू हैव अ लिंकेज with the kind of fiscal and incentive measures which you have in place. तो ज़ाहिर तौर है कि स्वाति का जो प्रेजेंटेशन था उसका फोकस अलग था, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ ह्यूज step forward not only for the tourists who come to Delhi but also for anybody who wants facilitation of any kind, information of any kind. And I would urge that we should always have evaluative tools available with us. ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, तो हमें बिल्कुल वी हैव टू बी एब्रेस्ट ऑफ हाउ वी नीड टू कीप द ऐप इन ट्यून विद द टाइम्स, एंड आई एम श्योर दैट यू हैव द wherewithal टू डू इट. तो आई जस्ट थॉट आई वुड शेयर दीज थाट्स एट अ ब्रॉडर लेवल, बिकॉज दिल्ली के बहुत कुछ ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं, जो टूरिज़्म के बियॉन्ड भी मैक्रो लेवल पे हम देखें तो बहुत एडवांटेजेस हैं, and tourism can actually be leveraged into that broader picture so that there is a consistency of approach altogether. And इसके साथ मतलब आगे ये अच्छी शुरुआत है, आगे का काम जो है वो बहुत है, बट दिल्ली के जो फ्लेवर्स हैं, जो जायका है, वो चाहे मीर तकी मीर हो, जो मिर्ज़ा गालिब हो या ज़ौक़ हो, ये जाहिर है कि वर्ड्स do not do justice to the essence and the expanse that is Delhi. So जब हम कहते हैं कि देखो मेरी दिल्ली देखो, that sense of ownership has to come from within us. Thank you very much. सर का अभिनंदन करें. धन्यवाद. मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सभागार में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, मंत्रिमंडल में मेरे तमाम साथीगण, विधायक साथीगण, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी, DTDC की टीम और साथ साथ मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आप सभी को वर्ल्ड टूरिज़्म डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दुनिया भर में जैसा विक्रम देवदत्त जी ने अभी कहा कि टूरिज़्म का एक अलग फ्लेवर है, मैं देखता हूँ कि टूरिज़्म का फ्लेवर खुशहाली से जुड़ा हुआ है, कि टूरिज़्म अच्छा चलता है तो खुशहाली है, और खुशहाली है तो टूरिज़्म अच्छा चलता है, दोनों एक दूसरे पर हैं. और जब हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाते हैं तो एक तरह से खुशहाली का दिवस मना रहे हैं,
और खुशहाली की लाने की कामना के साथ मना रहे हैं। तो आप सबके जीवन में खूब खुशहाली आए, और इतनी खुशहाली आए कि आप खूब सैर करें दुनिया की खूब अच्छे से। ये सब शुभकामनाओं के साथ मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अपनी टीम, विक्रम देवदत्त जी और स्वाति जी के नेतृत्व में जिस टीम ने काम किया है इस ऐप को डेवलप करने पर, आज के दिन इसको लॉन्च करने के लिए संभव बनाने पर काम किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जितने भी इसके इंटरेक्शंस हुए इस ऐप को डेवलप करने के, मैं बहुत इंटेंसिव डिस्कशंस में शामिल रहा हूँ, और मैंने देखा है कि किस तरह से एक एक व्यक्ति पूरी टीम में इस ऐप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक ऐप के रूप में नहीं बल्कि ऐसे रूप में प्रस्तुत रहा है। मान लीजिए हम किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और जब इस ऐप को नाम दिया गया देखो हमारी दिल्ली, तो ऐसा लगा जैसे हम पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक इनविटेशन लेटर बना रहे हैं। जब हम इस ऐप की तैयारी कर रहे थे तो इसकी मीटिंग्स में हमेशा हम सब के अंदर ये फीलिंग होती थी कि हम कोई टेक्निकल ऐप बना रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज़्म का ऐप है तो बात टूरिज़्म की होनी है, लेकिन हम सब के मन में ये भाव रहा कि हम दिल्ली की तरफ से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली के लीडर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इस देश को और इस दुनिया को दिल्ली आने का इनविटेशन दे रहे हैं। और हम सब मिलके, जैसे शादी ब्याह या घर का कोई खुशहाली का फंक्शन होता है ना, उसमें लोग प्रिपेयर करते हैं जॉली गुड मूड में कि हाँ जी आप इकट्ठे हो, कार्ड कैसा बनेगा, वेन्यू कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा। उसी तरह से हम उसी खुशहाली के भाव के साथ में मिलके इस ऐप को तैयार कर रहे थे सब लोग, उसी भावना के साथ में कि हम खुशहाली को देखने के लिए, अपनी दिल्ली को देखने के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये ऐप नहीं है, ये हमारे लिए निमंत्रण है कि आइए देखिए हमारी दिल्ली को। हम चाहते हैं कि आप आएँ और हमारी दिल्ली को देखें। हम आपके हाथ में एक ऐप नहीं भेज रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड जब आप कर रहे हैं तो आप एक तरह से आप हमारा इनविटेशन लेटर, इनविटेशन रिक्वेस्ट, इनविटेशन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं सारी दुनिया को दिल्ली की तरफ से ये इनविटेशन सौंपते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौंपने के लिए समय निकाला है। विक्रम जी ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि टूरिज़्म इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी औसतन दिल्ली में एक टूरिस्ट के रुकने का जो समय है लगभग 1.5 दिन माना जाता है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको 2.5 दिन में तब्दील कर दिया जाए। और 2.5 दिन में तब्दील करने भर के, ये 1 दिन लगता तो छोटा है, लेकिन जो लोग टूरिज़्म सेक्टर में काम करते हैं उनको पता है कि 1 दिन नहीं, 1-1 घंटे का स्टे बढ़ाने के लिए कितनी वैल्यू होती है। तो हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, हम जानते हैं। लेकिन अब जब हमने इनविटेशन दे ही दिया है दुनिया भर को आने के लिए, तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ दुनिया आके 1.5 दिन से 2.5 दिन ठहरना शुरू करे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे टूरिज़्म डिपार्टमेंट संभालने का आदेश दिया था तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि विज़न क्या है, कुछ उनकी तरफ से दिशा निर्देश हों। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी कि 3 लोगों को ध्यान में रखिए। एक वो व्यक्ति जो किसी काम से दिल्ली आ रहा है, किसी भी देश की राजधानी है, किसी रिलेटिव से मिलने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आ रहा है, किसी नेता से किसी ऑफिस में आ रहा है, किसी मार्केट में आ रहा है अपने बिजनेस के सिलसिले में, वो जब दिल्ली आए तो उसको हम दिल्ली के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से उसको हैंड होल्ड कर सकें, उसको थोड़ा सहारा दे के बता सकें कि भाई अपना बिजनेस करने आ रहे हो, वेलकम है, पर थोड़ा यहाँ भी आइए ना, ये शॉपिंग है, ये खाने की जगह है, ये घूमने की जगह है, ये एंटरटेनमेंट की जगह है, यहाँ आप दिल्ली को फील कर सकते हो, यहाँ देश को फील कर सकते हो। तो थोड़ा सा उसको वो फील फैक्टर हम उसको दे सकें, ताकि वो अगर 24 घंटे के लिए भी आ रहा है तो उसमें से 4 घंटे किसी तरह से बचाना चाहे, या 24 घंटे को 28 घंटे में बदलना चाहे। पहला वो। दूसरा ये कि लोगों के, देश की राजधानी होने के नाते देश और दुनिया के लोगों की दिल्ली में दिलचस्पी है, जिज्ञासा है, तो वो लोग भी अगर आना चाहें तो फिर उनको, जैसा स्वाति जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि उनको फिर इधर उधर से दोस्तों से पूछ के, गूगल की 4 साइट्स पे जाके
ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ऑथेंटिक गवर्नमेंट की तरफ से उसको ये पूरा समझ में आ जाए कि साहब मैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का अगर दिल्ली देखने का प्लान बना रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये उसको जवाब दे सकें, हम उसको जवाब दे सकें। सर ने बताया कि एक तो जो अपने काम से दिल्ली आ रहा है उसको ध्यान में रख के काम करना है टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जो दिल्ली घूमने के लिए काम से दिल्ली आ रहा है उसको देख के लिए रखना है, और तीसरा दिल्ली वासी, दिल्ली का एक आम आदमी खुद अपने परिवार के साथ जाए या उसको कोई कहे कि यार मैं ना आपके यहाँ आ रहा हूँ 1 दिन के लिए, तो बताओ कहाँ ले चलोगे, हम आना चाहते हैं आपके यहाँ, रिश्तेदार हैं आप हमारे, कोई 50-100 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से बैठा हुआ आदमी आके कहे दिल्ली वाले को फ़ोन करके हम आ रहे हैं आपके यहाँ, सैटरडे संडे बिताएंगे, बताओ कहाँ जाना है। अब उसने कह दिया यार हमको पास के एक मॉल या पास के किसी रेस्टोरेंट के अलावा कुछ पता नहीं होता कि कहाँ लेके जाएंगे, उसको भी सर ने बोला कि उसको भी जवाब मिल सके, उसके पास भी कुछ ऑप्शंस हों कि साहब यहाँ ले जाओ, उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हों और वो 4 बता सके। तो सर आज आपने जो डायरेक्शन दिया, थोड़ा समय लगा लेकिन हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके उन तमाम सवालों का जवाब जो दिल्ली के रहने वाले के मन में हो, जो दिल्ली देखने आने वाले के मन में हो या दिल्ली में किसी काम से आने वाले के मन में हो, उनका जवाब इस ऐप में दिया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसको हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर दुनिया को, देश को सौंप रहे हैं, आपकी मौजूदगी में सौंप रहे हैं। मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी पूरी टीम को, स्वाति जी को, विक्रम जी को, और जिन्होंने ऐप डिज़ाइनिंग की टीम है, ऑफिसर्स, बाकी लोग हैं जिन्होंने इसको पूरे कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को विजुलाइज करते हुए इम्प्लीमेंट करने में भूमिका निभाई। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इस अवसर पर आज के इस बहुत ही प्रभावी क्षण में इस ऐप को लॉन्च करें। एक बार जोरदार तालियों से हम आप सबका एक मिनट लाइट के लिए आपको मिल जाएगा समय सर जी। और ये वो अवसर, अब जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। देखिए मेरी दिल्ली, देखो मेरी दिल्ली, ये ऐप, मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने मोबाइल पर इसे ज़रूर आप लोग डाउनलोड करें। ये ऐप आपको वो सारा अनुभव देगा जो आप दिल्ली के विषय में चाहते हैं। सारा ऐप आपकी एक उंगली दूर, दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जिससे आप परिचित हैं उसके विषय में आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे ऐप को। पीछे आप देख रहे हैं, जो सर देख रहे हैं स्क्रीन पर, वही आपको पीछे विजिबल है। दिल्ली में आप जहां मनोरंजन के लिए जाना चाहें, पूरी दिल्ली के विषय में जानकारी आप ले सकते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर, साथ ही प्रबंध निदेशक DTDDC हमारे साथ, आप देख रहे हैं अलग अलग। और आज आप इसे डाउनलोड करके ये देखिएगा कौन कौन सा हिस्सा दिल्ली का है जिससे आप परिचित नहीं हैं। ऐप स्टोर और गूगल स्टोर पर आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अब कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है, मुझे बहुत दूर तक चलना है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को एक संबोधन के लिए। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन। सबसे पहले वर्ल्ड टूरिज़्म डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के लोगों को आज इस ऐप को समर्पित किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई
मैं समझता हूँ कि ये सभी दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए और विश्व भर से जो लोग दिल्ली आते हैं, देश में आते हैं, उनके लिए ये ऐप बहुत बहुत यूज़फुल साबित होगा। दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और दिल्ली एक आधुनिक शहर है। दिल्ली में अगर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो दिल्ली आए बिना उसका काम नहीं चलेगा। और अगर कोई इस देश की सबसे आधुनिक चीज़ों को देखना चाहता है तो उसे भी दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में सब कुछ है। दिल्ली में खाने की शानदार जगह हैं, दिल्ली में एंटरटेनमेंट की ढेर सारी चीज़ें हैं, दिल्ली में ऐतिहासिक स्थल हैं, दिल्ली में सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ की कमी थी अभी तक, इन्फॉर्मेशन। वो ये ऐप पूरी करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह एकत्रित, व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, इस चीज़ की कमी थी। वो मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरह से आपने देखा, जिस अच्छे तरीके से और यूज़र फ्रेंडली तरीके से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है, इसमें यह है कि आप अगर यहाँ बैठे हैं और आपको आपके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये देखना है कि कौन कौन सी ऐतिहासिक स्थल हैं, कौन कौन से ईटिंग जॉइंट्स हैं, कौन कौन से फ़न प्लेसेस हैं, कौन कौन से पार्क्स हैं, आप अभी तुरंत देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पर्यटकों के लिए तो यूज़फुल होगा ही। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल तो दिल्ली वालों के लिए होने वाला है। हम जाते हैं, एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, मान लो घंटे 2 घंटे का बीच में गैप है, अगली मीटिंग हमारी 2 घंटे बाद है, 2 घंटे खाली हैं हमारे पास, हमें कई बार समझ नहीं आता मैं समय कैसे बिताऊं। आप ये ऐप निकालिए और इस ऐप में आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, कौन कौन सी फ़न प्लेसेस हैं। मैं अपना 2 घंटे का समय कैसे यूज़फुल बिता सकता हूँ वो समझ में आ जाएगा। इसके ज़रिए आप टूर प्लान कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अभी आपने देखा। और इतने सेंसिटिविटी के साथ इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है कि ये पब्लिक कन्वीनियंसेस भी आपके आसपास कहाँ पे है वो भी इस ऐप के अंदर डाली गई है कि आपको तुरंत आसपास कहीं जाने की ज़रूरत है तो वो भी ये ऐप बता देगा कि यहाँ पे लोकेशन है, आप यहाँ जा सकते हैं। हमारे देश में तो खैर ऐसा कोई शहर या राज्य नहीं है जहाँ पे इस किस्म का ऐप हो, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे जहाँ इस किस्म के ऐप आपको मिल सकते हैं। तो शायद दिल्ली आज उन चुनिंदा दुनिया के शहरों में शामिल होने जा रहा है जहाँ पे इस किस्म की टूरिज़्म से रिलेटेड, टूरिज़्म क्या, केवल टूरिज़्म नहीं, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड एक ऐप बनाया गया है जो सबके लिए इतना यूज़फुल साबित होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इससे टूरिज़्म के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इससे इसका प्रभाव होगा और हमारा मौजूदा सरकार का मकसद है कि टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बढ़ोतरी के कुछ परसेंटेज नहीं, मल्टीपल बढ़ोतरी के चांसेस हैं। मतलब हम इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, कई गुना टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं। वो पोटेंशियल और वो स्कोप है। टूरिज़्म के बढ़ने से सारे क्षेत्र में असर पड़ता है। टूरिस्ट आता है तो वो खाना खाता है, फूड सेक्टर पे असर पड़ता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे असर पड़ता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे असर पड़ता है, हर किस्म की इंडस्ट्री पे असर पड़ता है। और ये अगर हम टूरिज़्म को बड़े स्तर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ कर पाए तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अच्छा असर डाल सकता है। जॉब्स बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हर क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में ये असर डालेगा। तो एक तो मैं सबसे पहले सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और जो भी दिल्ली आ रहा है विदेशी टूरिस्ट भी वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर डाउनलोड करेगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले सारे दिल्ली वाले इसको डाउनलोड करें। मैं चैलेंज करता हूँ आज हर दिल्ली वाले को कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप दिल्ली में रह के भी नहीं देखे हैं अभी तक।
तो पहले दिल्ली वाले देखना चालू करें। सारे अपने अपने दिल्ली को में खूब घूमें, खूब इसका आनंद लें, दिल्ली का खाने का आनंद लें, फन प्लेसेस का आनंद लें, सारी ऐतिहासिक स्थानों का आनंद लें। अपनी दिल्ली का आनंद हम दिल्ली वाले तो शुरुआत करें, दिल्ली वाले तो इसका आनंद लेना चालू करें। तो मैं चैलेंज करता हूँ हर दिल्ली, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अभी तक आपने देखी नहीं होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जो अभी हमारे विक्रम देवदत्त जी ने भी कहा और मनीष जी ने भी कहा कि हमारा मकसद है कि हम हर टूरिस्ट जो यहाँ आ रहा है वो अगर 1 दिन के लिए आ रहा है तो उसे किसी तरह से 2 दिन रुके, 2 दिन आ रहा है तो 3 दिन रुके, 3 दिन आ रहा है तो 6 दिन रुके। जितना ज़्यादा टूरिस्ट रुकेगा और जितना ज़्यादा वो खर्च करेगा उतनी हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो ये हमारा टारगेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें ये बहुत यूज़फुल साबित होगा। आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे के दिन इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है और सबसे मेरी गुजारिश है कि इस ऐप को और अच्छा बनाने के लिए अपने सुझाव ज़रूर दें। अभी बहुत सारी चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, स्कोप हमेशा रहता है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने सुझाव दें, इसको हम और बेहतर करते जाएंगे और बेहतर करते जाएंगे ताकि हर एक टूरिस्ट का एक्सपीरियंस दिल्ली के अंदर और अच्छा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को ये ऐप डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सर आपका हृदय से आभार। साथ ही आभार आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण और दिल्ली विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण का। पधारे हुए सभी हमारे माननीय अतिथिगण का भी हृदय से आभार। मीडिया के साथियों का विशेष तौर पर आभार कि आप यहाँ तक आए और इस कार्यक्रम को आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद हम सब एक लाइट रिफ्रेशमेंट के लिए चलेंगे और तब तक के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री सर से, हमारे साथ लाइट रिफ्रेशमेंट में सर आप अपना आशीर्वाद हम सबको दीजिए। एक बार जोरदार तालियों से आप टीम टूरिज्म के इस बेहतरीन प्रयास के लिए उनका अभिनंदन, आभार और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।